Okay, let's begin now with the remaining MCQs, last 30 MCQs of this chapter left. Superposition of waves. Question number 61. Question number 61. क्या दिया है देखो यहाँ पे. Please read the question. It says a second harmonic has to be generated in the string of length L stretched between the two rigid supports. Second harmonic. Second harmonic मतलब क्या होता है? Second harmonic जो fixed length of the string होता है, the fixed length of the string. If I am talking about the fixed length of the string, fundamental vibration उसका कैसा होता है? ये होता है fundamental vibration, correct ना? And it is given by n is equal to come on 1/2L square root of T upon n. Is it there? Formula page है updated इसका? Check करो, open करो formula page. Keep it before you. So strings के लिए fundamental frequency ये है. This is the fundamental frequency. Is that clear? Strings के लिए fundamental frequency है. इसका first harmonic या second harmonic कैसे होगा? First overtone. What will be the first overtone? There are going to be two loops over here. इसके अंदर two loops होंगे. And let me call this as N1, that is equal to 2N. We call this as first overtone, or it is also called as second harmonic. तो second harmonic के लिए क्या होता है बताइए? Yeah, N1 is equal to 2 into 1/2L square root of T upon N, correct? Isn't it? Now in this case, this is node, and this is node, और ये रहा एंटी नोड, ये रहा एंटी नोड. सही है. नाउ आपने जो वीडियो देखा था, उसका शुरुआत में मैंने वीडियो दिखाया था, उसमें वी से दिस इज द पॉइंट एट विच इट इज प्लग्ड. द पॉइंट एट विच it is plugged, this has to be anti node. और जब उसको नोड को और क्लियरली डिस्टिंक्ट करना था, तो डिड यू सी दैट क्लियरली इन दैट वीडियो कि वो वहाँ पर टच कर रहा था, सो दैट नोड इज मेड डिस्टिंक्ट. डू यू रिमेंबर दैट वीडियो? नोड के पॉइंट को वो वहाँ पर टच करके डिस्टिंक्ट नोड बनाने की कोशिश कर रहा था. So node is the point where it is touched. You all were busy making the some fun of that video. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये याद रखें कि वहाँ पर वो जो नोड को है उसको डिस्टिंक्ट बनाने के लिए वो जाके वहाँ पे ऐसे टच कर रहा था. अगर आपको याद है तो कर रहा था वो टच. Did you see that? So node is the point where it is touched and antinode is the point where it is plugged. Is that clear? Read all the options here. Read all the options here, और सारे options अगर आप पढ़ते हो तो which is the correct option? It is plugged at, अगर यहाँ पर ये इस तरह से चल रहा है, अगर वो इस तरह से चल रहा है, तो if I am talking about the length, इसके length की अगर बात करें, can you tell me about the length of this? देखिए ये total length है इसका L, इसका total length कितना होगा? टोटल लेंथ इज L. ये L है. इसका आधा कितना होगा? और इसका आधा कितना होगा? L/4. So the point where the string has to be plugged and touched. Plugged at L/4, touch at L/2. Plugged at L/4, touch at L/2. ये सही है. Plugged at L/4, okay, touch at 3L/2.
3l/2 मतलब कहाँ पर आएगा वो, l/2 और एक l/2 और एक l/2, 3l/2 ये तो रॉन्ग है। प्लग एट l/2 and touch at l/2, wrong. Plugged at l/2 and touch at 3l/4, ये भी wrong है. So which is the correct answer here? A is the correct answer here. Is this clear to you all? Hello, क्या ये सबको समझ में आ गया? Did you all understand this? Okay? अच्छा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. इस क्वेश्चन से रिलेटेड number of loops for pth overtone and for pth harmonic. बोलिए, नंबर ऑफ लूप्स फॉर pth ओवरटोन एंड pth हार्मोनिक. MCQs है ये, A, B, C, D and the answer is C. You tell me the correct option. ओके, देखिए यहाँ पे दो लूप्स है सेकेंड हार्मोनिक के लिए, है ना. इसका pth वाला फॉर्मूला क्या होगा? pth वाला फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू P प्लस 1 टाइम्स n, करेक्ट है ना. n1 इज 2n. अब अगला वाला जो हार्मोनिक होगा वो 3n होगा. 3 लूप्स होंगे, 4 लूप्स होंगे, 5 लूप्स होंगे, ये सब नो, है ना. तो इसका जनरलाइज फार्मूला जो हमने लिखा था, जनरलाइज फार्मूला हमने जो लिखा था वो था np इज इक्वल टू p प्लस 1 n. अब जितने नंबर का हार्मोनिक होता है उतने लूप्स होते हैं. जितने नंबर का हार्मोनिक है वो लूप है, या फिर जितने नंबर का ओवरटोन होता है उसमें प्लस 1 करके लूप्स होते हैं, करेक्ट ना. तो यहाँ पर pth, दिस इज pth ओवरटोन, दिस इज pth ओवरटोन, या फिर p plus 1th harmonic. And how many loops this will have? This will have p plus 1 loops. Is this clear? चलिए इधर बात करते हैं. pth ओवरटोन के लिए p plus 1 loops, करेक्ट. एंड pth हार्मोनिक के लिए नहीं, p loops. जितना नंबर का हार्मोनिक होता है उतने ही लूप्स होते हैं ना. तो pth हार्मोनिक के लिए p लूप्स होंगे. इज दैट क्लियर? ऐसा कंफ्यूज करते हो, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने लायक कुछ नहीं है. जस्ट स्टिक टू द बेसिक्स. इज दैट ओके? ओके. ये क्वेश्चन हम अभी देखो कितने नंबर ऑफ लूप्स दिए हैं. द टोटल नंबर ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स आर रिस्पेक्टिवली. काउंट करने का और लिखने का. व्हाट इज आंसर? बहुत सिंपल है ना. हाउ मेनी नोड्स आर देयर? 1 2 3 4 5 6 हाँ कितना? 6 and 5. या 6 and 5. सो व्हाट इज आंसर हियर? बी आंसर करेक्ट है. ठीक है, वेरी गुड. इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी, थोड़ा सा. There are 18 loops, 18 loops. ठीक है. तो number of nodes and antinodes, number of nodes and antinodes. And अगला वाला क्वेश्चन है p loops are there. The number of nodes and antinodes. बोलिए. ओके, कितने नोड्स होंगे? p प्लस 1 नोड्स. डिसाइड कर लो यार. देखिए यहाँ पे 5 लूप्स है. देयर आर 5 लूप्स हियर. 5 लूप्स के लिए 5 एंटी नोड्स होंगे.
और एक एक्स्ट्रा नोड होता है। समझ में आ गया? तो P लूप्स के लिए P+1 नोड्स एंड P एंटी नोड्स। इज दिस क्लियर? और इधर 18 एंटी नोड्स एंड 19 नोड्स। इज दिस ओके? लाउडर एंड क्लियर। 6 एंटी नोड्स है क्या? Which of the following statements is incorrect? You have to select the incorrect statement here. Incorrect. देखते हैं. Quiet please. Every particle has the fixed amplitude. Stationary wave के बारे में कौन सा statement incorrect है? Every particle has the fixed amplitude which is different from the amplitude of the nearest particle. ये सही है. हर एक पार्टिकल जो होता है नोड के अंदर उसका एम्पलीट्यूड अलग होता है. All the particles cross their mean positions at the same time. ये भी सही है. All the particles are oscillating with the same amplitude. झूठ बोल रहा है. सेम एम्पलीट्यूड नहीं होता. सो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. there is no net transfer of energy across any plane. This is also correct. Stationary wave stationary होता है जिसके कारण it does not transport any energy. वो एनर्जी उधर ही खेलता रहता है. Okay? Yes, sir. Alright. I'll go for the next question now. Question number 64. Question number 64. The fundamental node produced by a closed organ pipe, it's a closed organ pipe, is of frequency nu. Frequency को कई बार nu बोलते हैं, कई बार n बोलते हैं, कई बार f बोलते हैं. ठीक है? Nu. The fundamental node produced by the open pipe of the same length will be. Same length का क्या होगा? बोलो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? वेल लेट मी से पहले तो हम ओपन पाइप की बात करते हैं. पहले क्लोज पाइप की बात करते हैं. सो व्हाट इज द बेसिक फार्मूला? प्लीज ओपन द फार्मूला पेज. क्लोज पाइप के लिए फार्मूला क्या है बताइए मुझे प्लीज. द फार्मूला सेज n फॉर क्लोज पाइप इज v अपॉन 4l. तो जो पाइप है उसका लेंथ l है. ठीक है? द पाइप लेंथ इज l v से. ठीक है? एंड इफ आई से तो इन्होंने ये जो NC है दे आर कॉलिंग दिस एज न्यू. दे आर कॉलिंग दिस एज न्यू. ठीक है? नाउ सेम लेंथ का ओपन पाइप अगर हम लेते हैं ओपन पाइप तो दिस विल बिकम N फॉर ओपन पाइप इज इक्वल टू V अपॉन 2L. ठीक है? वेल लेट मी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू. सो दिस विल बिकम NO. आई विल कॉल दिस एज इक्वेशन 2 and this is equation 1 and I'll divide equation 2 upon 1. क्या मिलेगा? NO upon nu is equal to V upon 2L divided by V upon 4L. तो V upon L gets cancelled. 2 2s are 4. ये 2 ऊपर चला जाएगा. So this will become 2 by 1. Therefore, the frequency of the open pipe is equal to 2 times nu. So what is the answer here? C. Is this clear to you all? So it's quite easy. अगला question. Let's go for the next question. Question number 65. देखिए क्या दिया है यहाँ पे. A steel rod. I'll call this as a half star problem. आप देख के मुझे बताइएगा बाद में. A steel rod of length 100 centimeter is clamped in the middle. Clamp किया है middle में. It's clamped in the middle. And frequency of the fundamental mode of longitudinal vibrations of the rod is. अब समझिए अगर ये रॉड है, say this is the rod, इसे क्लैम्प किया है मिडल में क्लैम्प किया है मिडल में, as in it's a node. प्रेस किया है उसको एंड दे से फंडामेंटल मोड में उसको वाइब्रेट होना है. बेसिकली आप एक चीज़ मुझे बताइए कि फंडामेंटल मोड में जब हम स्ट्रिंग को वाइब्रेट कराते हैं, स्ट्रिंग दिस इज अ रॉड, दे आर वाइब्रेटिंग द रॉड हियर. स्ट्रिंग को अगर वाइब्रेट कराते थे फंडामेंटल मोड के अंदर तो वो वाइब्रेशन कुछ इस प्रकार का मिलता है. यस और नो? आई मीन वी गेट देयर 1 एंटी नोड एंड 2 नोड्स. यस और नो?
क्योंकि उसको क्लैंप यहाँ पर किया जाता है। फंडामेंटल मोड मतलब वन लूप, फंडामेंटल मोड का मतलब होता है वन लूप। रॉड को अगर फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कराते हैं और यहाँ पर उसको क्लैंप किया है, दैट मीन्स दिस इज अ नोड, तो नेचुरली वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। That means we are allowing the rod to vibrate at the other ends, and ultimately this will form आधा loop plus आधा loop is one loop. Is that clear? That is the fundamental mode. समझ में आ गई बात? Is that clear? So यहाँ पे फंडामेंटल मोड पर जब हमने उसको वाइब्रेट करा दिया है तो वहाँ पे वही आएगा, फॉर्मूला वही आएगा तुम्हारा। दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड वगैरह सब दिया है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, दे आर आस्किंग व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, कैन यू प्लीज टेल मी? उसके लिए बेसिक फार्मूला क्या होता है बताइए। इन दिस केस इसका लेंथ मुझे बताया गया है, दिस लेंथ इज इक्वल टू कितना है, लेंथ इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर, isn't it? And we will simply use the formula V is equal to n lambda, V is equal to n lambda। अब यहाँ पर मुझे ये कितना है यहाँ पर, दिस इज वन लूप, वन लूप का मतलब होता है लैम्बडा बाई 2, इज दैट क्लियर? सो लैम्बडा बाई 2 अगर 1 मीटर है, देन व्हाट इज लैम्बडा इज इक्वल टू 2 मीटर। तो आई गॉट हियर दिस, आई गॉट द स्पीड ऑफ साउंड। So can I find out what is n का value there? Hello? So what is n is equal to V upon lambda. V upon lambda. Now V is equal to 5 km per second. That means 5000. And lambda is equal to 2. So this is equal to 2500 hertz. That is equal to 2.5 kilohertz. Is that clear to you all? So the answer is C. Shall I call this as half star or no star? No star. Easy था? Okay, easy था, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अलग टाइप का था, बस यही था और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या दिया है यहाँ पे? जैसे क्वेश्चन नंबर 66, a pipe 30 centimeter long, पाइप का लेंथ इज 30 सेंटीमीटर विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स। सो L इज इक्वल टू 0.3 मीटर। विच हार्मोनिक मोड ऑफ पाइप रेजोनेट्स 1.1 किलो, विच हार्मोनिक? इट्स अ ओपन पाइप। ओपन पाइप में क्या होता है जी, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट ना, क्लोज पाइप all harmonics are present, open pipe all harmonics, so this is p plus 1 times n होता है। they are asking कि भाई ये कौन से नंबर का हार्मोनिक है वहाँ पे, एंड फ्रीक्वेंसी दिया है उन्होंने, दिस np is equal to 1.1 किलो हर्ट्स और 1100 हर्ट्स, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर v is equal to 330 मीटर पर सेकेंड। कैसे करेंगे भाई? देखिए यहाँ पे मुझे उसके लिए फॉर्मूला जो है फॉर ओपन पाइप, ओपन पाइप के लिए आप लोगों ने pth ओवरटोन लिखा है, क्या होता है, np इज इक्वल टू p प्लस 1 टाइम्स n, दैट इज इक्वल टू p प्लस 1, लेकिन इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय v अपॉन 2l, करेक्ट। और मुझे इसमें से p फाइंड आउट करना है या p प्लस 1 फाइंड आउट करना है, दे हैव ऑलरेडी गिवन ऑल दीज वैल्यूज यू नो, so let me just substitute। So this is 1100 is equal to p plus 1, v is 330 divided by 2 and L is 0.3. I hope this is very easy. I just need to find out what is p plus 1. P plus 1 is equal to 1100 into 2 into 0.3 divided by 330. एक गया 0, 11 1 जा, 11 3 जा and 3.1 जा, so this is equal to 2. So this is the second harmonic. क्योंकि p plus 1 जो यहाँ पर होता है, if I tell you that, यहाँ पर अगर आप गौर से देखते हो तो this is the harmonic, ये हार्मोनिक होता है, एंड p जो होता है वो क्या होता है उसका ओवरटोन, p is the ओवरटोन। तो अगर उन्होंने हार्मोनिक पूछा है तो p plus 1 का वैल्यू 2 आता है। अगर वो ओवरटोन पूछते
हाँ, P है तो ओवरटोन, तो यहाँ पर P is equal to 2 minus 1 is equal to 1, so it would have been the first overtone. So what is the answer here? Second overtone, second harmonic. Is this clear to all? समझ में आ रहा है क्या? फॉर्मूला पेज सामने है क्या? अपडेट किया हुआ है क्या आपका खुद का फॉर्मूला पेज? ओके, फॉर्मूला पेज, डज दैट हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर? इज दैट ओके? या इसलिए अपडेटिंग एंड कीपिंग द फॉर्मूला पेज रेडी इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 67. द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 256 hertz. The frequency of tuning fork is 256 hertz. It will not resonate with the fork of frequency. Yes. देखिए ट्यूनिंग फोर्क जो है उसका फ्रीक्वेंसी दिया है n इज इक्वल टू, अगर उसको रेजोनेट करना है तो 2n के साथ करेगा, 3n के साथ करेगा, 4n के साथ करेगा, तो इसका डबल आएगा 256. दिस इज इक्वल टू n, तो इसके साथ वो रेजोनेट कर सकता है. इसका डबल आता है, दिस इज 2n, इसके साथ भी रेजोनेट कर सकता है. इसका ट्रिपल कितना आएगा? 2 3 6 3 18. हाँ, तो इसका 3n ये आएगा, दिस इज 3n, इसके साथ भी रेजोनेट कर सकता है वो, बट इट विल नॉट रेजोनेट दिया है ना, सो इट विल नॉट, इट विल, तो ये यहाँ पर रेजोनेट कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, यहाँ पे कर सकता है, इधर वो रेजोनेट नहीं कर सकता. सो दिस इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68. when a string fixed at its both the ends, दिखाई दे रहा है आपको क्वेश्चन? or should I increase the size? when a string fixed at both its ends vibrates in 1 loop, 2 loop, 3 loop, 4 loops, the frequencies are in the ratio. 1 loop मतलब fundamental frequency, 1 loop, 2 loops, 3 loops and 4 loops. तो यहाँ पर होता है फ्रीक्वेंसी n, इधर होता है 2n, इधर होता है 3n एंड इधर होता है 4n. So the frequencies are in which ratio? 1:2:3:4. Is this okay? Correct, ना? अगला क्वेश्चन. This is just like question number 66 that we have solved. अभी जो सॉल्व किया उसी टाइप का क्वेश्चन है ये. It's a closed pipe, a pipe of 17 centimeter long. So L is equal to 17 centimeter, that is 0.17 meter. Is closed. Which harmonic mode of pipe resonates with 1.5? NP is equal to 1.5 kilohertz, that is equal to 1500 hertz. ठीक है. Source. Speed of the sound in the air, V is equal to 340 meter per second. Speed of the sound is this. Is this here? They are asking which harmonic, मतलब P plus 1 पूछा गया है. It is just like question number 66. Can I give it as a homework? हाँ? Yes sir. This is a homework for you. इसका आंसर है B. अगला क्वेश्चन. टाइप है क्वेश्चन नंबर 66 के टाइप. अगला क्वेश्चन. A resonating air column shows the resonance with the tuning fork of frequency 256 at the column lengths 33.4 and 101.8. The speed of the sound in the air is given by. Now, this is a very good question. इसमें suppose there is one experiment which is performed. That experiment is called as resonance tube experiment. इसमें क्या होता है कि एक, let me explain you that experiment in short. वहाँ पर एक let me explain you. तो इसमें क्या होता है, एक पानी का कंटेनर होता है. कंटेनर इन द सेंस एक ट्यूब होता है, इसे व्हाट यू कॉल दिस, कंटेनर पानी का, और इसके अंदर पानी भरा होता है.
हाँ, एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो और यहाँ पर द वाटर इज फिल्ड इनसाइड हियर, और इसके अंदर एक ट्यूब डिप किया जाता है। एक्चुअली ये ट्यूब जो होता है इस तरह से होता है, और इस ट्यूब को आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो बिकॉज इट इज़ एक्चुअली फिक्स्ड टू वन स्टैंड। स्टैंड को, लेट मी फिनिश दैट एक्सप्लेनेशन। और फिर यहाँ पे एक ट्यूनिंग फोर्क लगाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर इस ट्यूब का लेंथ आप कम रखो तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन मिलेगा। यू विल गेट द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन हियर, मतलब यहाँ पर आएगा एंटी नोड और ये नोड आएगा। सो दिस इज द फंडामेंटल मोड क्लोज पाइप का। दिस इज अ क्लोज पाइप, यहाँ पर पानी का सरफेस है तो ये डेंसर मीडियम हो जाता है, करेक्ट ना। फंडामेंटल मोड में आएगा। अगर इस ट्यूब का लेंथ हम बढ़ा देते हैं, बाकी डायमीटर सेम रहेगा, इफ आई इंक्रीज द लेंथ तो इट विल हैव what do you say, this kind of mode of vibration. आप लोग इसको क्या बोलोगे? ये हाफ लूप, 1.5 लूप, और इट कैन हैव 3 लूप्स ऑल्सो। उसके 3 लूप्स भी 2.5 लूप्स भी हो सकते हैं वहाँ पे, 1 2 और इधर आधा लूप हो सकता है। तो इट कैन बी ऐसे। सो ऐसे नंबर ऑफ लूप्स उसके फॉर्मेशन हो सकते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल? दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आप लोग मुझे ये बस बताइए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है क्लोज पाइप का? n इज इक्वल टू क्या होता है? V/4L होता है। अब ये है उसका फर्स्ट ओवरटोन, बराबर है क्या? इज द फर्स्ट ओवरटोन। तो ये कितना होगा, या सेकेंड हार्मोनिक बोल सकते हैं। या नाउ दिस इज अ क्लोज पाइप। क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, करेक्ट। दिस इज अ क्लोज पाइप, और क्लोज पाइप के अंदर ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, ऑड हार्मोनिक्स। तो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी हियर? लेट मी कॉल दिस एज n1 इज इक्वल टू, इज दैट इक्वल टू 3n? हेलो, आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? या n1 इज इक्वल टू 3n। यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आएगा n2 इज इक्वल टू 5n, ऐसा आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, ठीक है। तो अब इस लेंथ की अगर बात करें, क्योंकि n1 इज इक्वल टू 3n, अगर मैं इसमें फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो दिस विल बिकम n1 इज इक्वल टू, अगर इसका फ्रीक्वेंसी वाइज देखेंगे तो ये 3 टाइम्स है, और लेंथ वाइज अगर हम देखेंगे अब यहाँ पे, इफ आई एम चेकिंग हियर द लेंथ, तो ये लेंथ अगर L होता है तो ये लेंथ, क्योंकि सेम ट्यूनिंग फोर्क वी आर यूजिंग हियर, वी आर यूजिंग द सेम ट्यूनिंग फोर्क रहेगा यहाँ पे। तो अगर ये सेम ट्यूनिंग फोर्क हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ये 3 टाइम्स L हो जाता है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस विल बिकम 3 टाइम्स L। इज दैट क्लियर टू ऑल? व्हाई? क्योंकि यहाँ पर मैंने सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज़ किया है, सेम ट्यूनिंग फोर्क। ऑलराइट, ठीक है। तो ये पहला वाला लेंथ इन्होंने दिया है 33.4 सेंटीमीटर, और ये 3 टाइम्स L है 101.8 सेंटीमीटर। चेक करिएगा, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली आपको वही आंसर आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इन दिस केस, या उसको वहाँ से प्लीज बंद कर दो, वो सही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे इसका जो लेंथ आएगा, ये फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगा, लेकिन दिस हैज़ इंक्रीज्ड लेंथ। तो आई वुड से दैट n इज इक्वल टू v इज इक्वल टू n लैम्बडा के हिसाब से अगर मैं इसमें लिखना चाहूँ तो ये क्या बन जाएगा? आई विल गेट दिस एज, दे आर आस्किंग व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड हियर ना, क्वेश्चन नंबर 70। या स्पीड ऑफ द साउंड इज आस्क्ड हियर। आपके लिए मुझे यहाँ पर एक ये बताना पड़ेगा। आई विल कॉल दिस लेंथ एज L1 एंड आई विल कॉल दिस लेंथ एज L2।
दिस लेंथ आई एम गोइंग टू कॉल इट एज L2, ठीक है। और एक फार्मूला यहाँ पर रेडीमेड फार्मूला जो एक्चुअली हमारे सिलेबस में था लेकिन उन्होंने उड़ा दिया कि एंड करेक्शन इन दिस केस इज गिवन बाय, क्योंकि यहाँ पर एंड करेक्शन होगा ना कुछ, तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ एंड करेक्शन ओवर हियर। तो ये एंड करेक्शन इज, डू वी नीड दैट एंड करेक्शन? आई डोंट थिंक वी नीड इट, नो वी डोंट नीड। अपने को सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए ना, ओके। What formula shall I use here? V is equal to n lambda यहाँ पे, and V is equal to n1 lambda 1 या n lambda यहाँ पे भी। What is lambda is equal to here? V upon 2L। देखिए यहाँ पे दिस इज 33.4, ये 33.4 यहाँ से अगर मैं सब्स्टिट्यूट माइनस कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा रे? इज दिस इक्वल टू 1 लूप, बराबर है ना? सो व्हाट विल बी L2 माइनस L1, इज दैट इक्वल टू 1 लूप, मतलब लैम्बडा बाय 2, करेक्ट ना? तो L2 माइनस L1 अगर हम करते हैं 101, if I say 101.8 minus 33.4 कितना आएगा ये? 160, ओके 68.4। 68.4 इज इक्वल टू लैम्बडा बाई 2, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इंटू 68.4, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मुझे ऑलरेडी पता है, दैट इज 256 हर्ट्ज। तो व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ साउंड? v इज इक्वल टू n लैम्बडा 256 इंटू 2 इंटू 68.4, 256 का डबल आएगा 512 इंटू 68.4। कैसे प्लीज, कैसे करके बता दीजिए मुझे कितना आएगा ये सेंटीमीटर है, हाँ एक्चुअली ये सेंटीमीटर है, अगर मुझे मीटर में चाहिए तो उसको डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। हाँ तो कितना आएगा? 3500 आएगा बेसिकली, ये 35,000 centimeter per second. If I divide it by 100, this will become 350 meter per second, and that is the speed of sound. Is this okay? ये एक्चुअली ये वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में उन्होंने उड़ा दिया है, तो आई हैड टू गिव यू द इंट्रोडक्शन फॉर दिस थिंग। हाँ बोलो। नहीं, यहाँ पर वो 330, इस कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर 350 आ रहा है, एंड इफ दे गिव, हाँ इफ दे गिव द आंसर विच इज 330, स्टिल दिस इज द करेक्ट आंसर। एक मिनट, यहाँ पर अगर मैंने 330 दिया तो विच इज द करेक्ट आंसर? नहीं, कैलकुलेशन के हिसाब से जो आंसर आएगा वो आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तरी स्टिल दिस इज नॉट वेरी क्लोज एक्चुअली, आई वुड से इट्स नॉट दैट क्लोज एक्चुअली, है ना? हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। इट सेज a wire is stretched, I don't know, let's see, a wire is stretched between the two rigid supports, and this wire vibrates in its fundamental mode। ये वाइब्रेट करता है इसके फंडामेंटल मोड में, ठीक है। खींचा जा रहा है, वाइब्रेट्स इन द It vibrates in the fundamental mode with a frequency 50 Hz. The mass of the wire is 30 ग्राम। मुझे वो वायर वाले फॉर्मूले बता दीजिएगा प्लीज। वायर का मास है 30 ग्राम, मतलब 30 इंटू 10⁻³ kg और 3 इंटू 10⁻² kg, करेक्ट? इट्स लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी को हम क्या बोलते हैं?
पहले तो फॉर्मूला बताइए स्ट्रेच स्ट्रिंग का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 1/2L स्क्वायर रूट ऑफ T अपॉन m, सही है ना। इसमें m इज द लीनियर डेंसिटी विच इज गिवन टू बी 50, कितना दिया है, 4 इंटू 10⁻² kg पर मीटर, kg मीटर पर सेकेंड। ओके, स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव एट द स्ट्रिंग इज, मतलब v पूछा है, कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला है। Which one? Actually, this is the stretch string ना, तो v is equal to n लैम्बडा यूज कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, ये फंडामेंटल मोड में कर रहा है, मतलब फंडामेंटल मोड में है, मतलब दिस इज द वे इट इज वाइब्रेटिंग, ये फंडामेंटल मोड है। अगर समहाउ मुझे उसका लेंथ पता चले, दिस लेंथ इज एक्चुअली इक्वल टू λ/2 बिकॉज इट्स हाफ वेव ना, तो मेरा काम है, देखिए यहाँ पे मुझे फ्रीक्वेंसी तो पता है, n इज इक्वल टू नोन टू मी, लैम्बडा अगर मुझे पता चलना है तो उसके लिए l चाहिए, और l शायद मुझे इससे पता चलेगा। आई डोंट नीड दिस फार्मूला, आई थिंक दिस फार्मूला इज सफिशिएंट फॉर मी। अब इससे लेंथ कैसे पता करेंगे ना, व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर डेंसिटी इज इक्वल टू, लीनियर डेंसिटी मतलब क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, करेक्ट ना। ओके, तो क्या मुझे लीनियर डेंसिटी पता है और क्या मुझे m भी पता है, तो कैन आई फाइंड आउट L विच इज इक्वल टू m अपॉन m एंड दैट इज इक्वल टू λ/2, करेक्ट। तो व्हाट विल बी लैम्बडा इज इक्वल टू 2m अपॉन m, ये लैम्बडा मिल गया, तो इधर सब्स्टिट्यूट कर लो। सो व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, इट इज n टाइम्स, n इज इक्वल टू 50 इंटू लैम्बडा की जगह पर ये आएगा, व्हाट इज दैट, 2 इंटू कैपिटल M इज 3 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय स्मॉल m इज 4 इंटू 10⁻², ये गया, दिस इज 2 2 एंड 2 25 3 75 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। सो दैट इज C is the answer. Is this clear? Any doubts about that? I'll have to